photovoltaic also there are different kinds of technologies which are available. Have you ever read about it? Do you have an idea about that? No. Alright. So basically there are different types of solar power plants in photovoltaic, which is crystalline technology and thin film. So the basic component of any power plant is silicon. So everything, all the solar cells are made of silicon. The combination of solar cells makes up a module, which is a blue panel which you see, which converts light source to use at the night usage. Then you need to have batteries attached to it. So another component gets added to it. So these are a brief about how a solar power plant works. The demonstration plant, Raman will explain you in detail as to which this is the panel, this is the inverter, this is how it works. Now, to propagate this, MNRE has launched Jawaharlal Nehru National Solar Mission. I believe everybody must have heard about it. All of you are engineers, right? So I heard some no in between. Yes. Okay. So MNRE had launched Jawaharlal Nehru National Solar Mission, which has a target of achieving 20,000 megawatts of energy from solar by 2020. That's a huge target where we are currently standing at about to any industry, in any let's say construction industry. Now in terms of construction, if you're constructing a building, so you need to install that building, you need to procure the components for it, and you need to design that building. So similar steps are there in solar power plants as well. NICE does training courses on a regular basis to increase the technical expertise which is required for the solar industry. Now there are regular training programs which are happening for professionals as well as for students like you who want to enter or maybe thinking of entering industry but does not know how to do it. So you can get and access it from MNRE website, which is mnre.gov.in. In that there is a link to NICE. So on that link you will find a calendar of events for the training courses which are organized by NICE. Other than that, we even do trainings particularly on student campuses also, on university campuses, focused for engineering students. So that probably you can check with your teachers probably or director, and you can talk to them if you want to enter the solar industry. Then we can have a customized program at your campus also. Sounds good. So now what we'll do is Mr. Raman will show you how and what is happening. He is a senior fellow here who does R&D, a lot of R&D projects. So he is the best person to deal with you, and he is going to explain you how and what a solar power plant is. All right? Okay. Thank you. हवा के लिए है, हवा गर्म हो सके, और उस हवा को हम ब्लोअर यहाँ पे इसमें लगाए हुए हैं। ब्लोअर से वो हवा को सक करता है, और ये इंसुलेटेड रूम है, इसके अंदर ये सीट ये स्टेनलेस स्टील की वायर मैश की ट्रे है। इस ट्रे को इसमें लगा के तो जो भी आपको मटेरियल सुखाना है वो इसमें रख के और इसको बंद कर देंगे। ये अभी जस्ट हमने अभी बनाया है, इसका वर्किंग स्टार्ट कभी किया नहीं है हमने। ओवन आप लोगों ने देखा ना, वैसा ही लग रहा है। ये बिल्कुल परफेक्टली इंसुलेटेड चैम्बर है। जो टेम्परेचर इसके अंदर बन जाएगा वो सराउंडिंग एम्बिएंट टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं करेगा।
पानी स्प्रे करेंगे तो उसका ग्लास क्रैक तो नहीं करता है, या वहाँ पे उसमें जो सेटअप बना हुआ है उसके ऊपर उसकी सीट रख के देखते हैं ग्लास की सीट की ट्रांसमिटेंस कितनी है, कितनी पारदर्शी शीशा उसने इस्तेमाल किया है। उसके अलावा हम इसमें बाहर से उसके अंदर गर्म पानी डालेंगे और फिर उसके अंदर पानी को स्प्रे करेंगे, फिर देखेंगे कि उसकी एफिशिएंसी क्या आती है, कैसा वो बिहेव करता है उस टाइम पे। तो ये सारा सेटअप हमने बनाया हुआ है फ्लैट प्लेट कलेक्टर को टेस्ट करने के लिए। अभी 2 टाइप के कलेक्टर्स मेनली आते हैं, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर होता है और एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर जो होता है वो फ्लैट प्लेट का मतलब होता है कि फ्लैट सीट होती है ग्लास की, और उसके अंदर जैसा मैंने आपको एयर ड्रायर के अंदर दिखाया है वैसे ही बैक में सीट होती है और कॉपर की ट्यूब्स को ब्लैक कोटिंग करके उसमें लगाया जाता है और उसके अंदर से पानी सर्कुलेट करता है और वो गर्म होता रहता है पूरे दिन में। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज है वो 100 लीटर पर डे का है, यानी कि पूरे दिन के अंदर में 100 लीटर पानी गर्म करेगा वो 90 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल डेज में। दूसरा इवैक्यूएटेड ट्यूब है, उसके अंदर आप उधर चल के देख सकते हैं उसको। Flat plate collector, that is evacuated tube collector. इसके अंदर जो बीच में आपको सर्कुलर ट्यूब दिख रही है ये कॉपर पाइप है और इसके साथ में पिंस को वेल्ड किया हुआ है। गैस वेल्डिंग से कॉपर की पाइप के साथ में इसको वेल्ड किया हुआ है ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और इतने बड़े एरिया में ये हीट को एब्जॉर्ब करके और कंडक्शन के थ्रू जो इसके अंदर पानी जाएगा उसको गर्म कर देगा वो। दूसरा एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी इसमें सेटअप पूरा नहीं है हमारा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उस हिसाब से आप समझिए फिर मुझे बताइएगा। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, ये इसका इंसुलेटेड टैंक है जिसके अंदर इसका गर्म पानी पूरे दिन में जो गर्म होगा वो स्टोर होगा, और इंसुलेटेड टैंक है जो इसमें टेम्परेचर रेज होगा वो बहुत ज़्यादा टाइम बाद में ठंडा होगा। लगभग 2 दिन लग जाते हैं इसको एम्बिएंट टेम्परेचर तक आने में। आज जो गर्म हुआ है वो परसों रात को जाके ठंडा होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमें इसमें एक रो वाटर का यानी कि ठंडा पानी जो सप्लाई का आता है वो एक इससे ज़्यादा हाइट पे हमें देना होता है इसको। लगभग 200 डिग्री का, अगर इससे बड़ा सिस्टम है 500 लीटर का है तो 1000 लीटर का भी दे सकते हैं, 200 लीटर का तो 100 लीटर के लिए सफिशिएंट है। तो वो इससे ज़्यादा अल्टीट्यूड पे, ज़्यादा हाइट पे होता है ताकि उसका पानी जो हम पंप करके उसमें स्टोर करेंगे वो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी से इसके अंदर आ जाए। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, हम इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल मोटर नहीं लगाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा अभी रखा हुआ है। तो इसके अंदर जो पानी यहाँ पे आ जाएगा वो वापस इस टैंक पे इससे ज़्यादा हाइट पे कैसे जाएगा? हीट होने से क्या होगा उसमें? वेपर्स तो नहीं आते, इसमें लिक्विड रहता है बिल्कुल। प्रेशर कैसे बनेगा उसमें? नहीं, कोई गैस हमने यूज नहीं की है इसमें। सिलेंडर की होती है उसके हिसाब से सिलेंडर, ऐसा कोई वेपर वाला सिलेंडर हमने इसमें यूज नहीं किया है। नहीं, बर्नौली प्रिंसिपल का भी नहीं है। अगर हाइट ऊपर उससे बर्नौली प्रिंसिपल से तो वो ज़्यादा जो हमारा रो वाटर का टैंक है उससे इसमें आएगा, नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? और कोई आइडिया? कोई गैस? हाइड्रोलाइसिस? इसमें हाइड्रोलाइसिस कहाँ किया है हमने? एक्चुअली यही मैं आपसे ये इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको उसमें शर्माने की कोई बात नहीं कि आपको नहीं पता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पहले पड़ी होती हैं और कभी उसका इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से या ज़रूरत नहीं पड़ने की वजह से वो भूल जाते हैं। जो भी आप
किसी भी कंटेनर में दूध उबालते हैं या चाय बनाते हैं, वो क्यों उबलती है और क्यों चाय बनती है उसमें? जो उसके मॉलिक्यूल हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक मॉलिक्यूल है वो उतना बड़ा है कि जितने बड़ी उसकी लेयर है। जैसे मान लो 2 लीटर डाला आपने दूध किसी एक कंटेनर में, जितना उसका सिलेंडर का हाइट होगा, उस कंटेनर का हाइट होगा, मतलब उतना बड़ा तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, एक उसका बहुत छोटा मॉलिक्यूल होगा। तो जो सबसे नीचे जो मॉलिक्यूल होगा, जो फायर के कांटेक्ट में आएगा, वो उससे फायर से हीट को गेन करके, हीट एब्जॉर्ब होने के बाद में वो लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा ठंडे मॉलिक्यूल से, वो इंटरचेंज होगा। उसको कन्वेक्शन करंट्स भी बोलते हैं। तो जो इसमें सर्कुलेट होगा पानी, वो गर्म होने के बाद में जो पानी इसके अंदर बचेगा वो इसके कंपैरेटिवली ठंडा होगा। भले ही 60 डिग्री का टेम्परेचर क्यों ना हो उसमें, लेकिन इसका 80 डिग्री होगा। ये मॉलिक्यूल उससे ज़्यादा लाइट होगा, वो इंटरचेंज होगा, अपने आप ये फोर्स करेगा उसको नीचे आने के लिए और ये ऊपर जाएगा। दिस सर्कुलेशन इज नोन एज थर्मोसाइफन मोड ऑफ सर्कुलेशन। थर्मोसाइफोन ये नेचुरल फ्लो भी है, जो मैं आपको वहां पे बता रहा था, फोर्स्ड कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन। अगर ये इंटरचेंज नहीं होता मॉलिक्यूल का, तो कभी भी कोई भी दूध उबलता नहीं। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म रहते, ऊपर ठंडे रहते, हाथ लगाते तो भी ठंडे ही मिलते। तो ये हमारा सोलर थर्मल का बहुत छोटे छोटे सेटअप मैंने आपको दिखाए हैं। अभी आपके कॉलेज के जो एल्यूमनी हैं रामायण, वो आपको फोटोवोल्टेक का बताएंगे, क्योंकि मैं थर्मल में काम करता हूं और वो फोटोवोल्टेक में काम करते हैं। इसके बाद में फिर दोबारा से हम मिलेंगे और आपको सोलर थर्मल के बहुत बड़े सिस्टम मैं आपको दिखाऊंगा। 1 मेगावाट सोलर थर्मल पावर प्लांट, सोलर बायोमास, हाइब्रिड कोल्ड स्टोरेज कम पावर जनरेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम लकड़ी से इंजन को चलाएंगे और उसकी बिजली को जो हम जनरेट करेंगे उसको तो हम इस्तेमाल करेंगे ही, साथ में उस जनरेटर का जो धुआं होगा उससे हम -5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनाएंगे। आम के आम, गुठलियों के दाम। ओके, semiconductor and generate means charge carrier, and it converts into electrical energy. So photovoltaic is actually a process of conversion of light energy into electricity. The region, like the process by which it converted from light to electrical energy, it's called photovoltaic effect. So इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टाइक बोलते हैं। फोटोवोल्टाइक पैनल या PV पैनल। So there are 3 types of technology in solar photovoltaic. One is monocrystalline, second one multicrystalline, third one is thin film. पता चल गया? पूछूंगा भी मैं तुम्हारे ही कॉलेज का हूँ इसलिए बता रहा हूँ। There are 3 types of PV technology. One is monocrystalline, second is multicrystalline, third one is thin film. आपने मोनो पढ़ा होगा, मल्टीक्रिस्टलाइन पढ़ा, कहाँ पढ़ा है? कौन सी सब्जेक्ट? एक SSDC का भी कोई सब्जेक्ट है, फीडिंग जो भी हो, पता नहीं चेंज हो गया होगा। मोनो, मल्टी और थिन फिल्म में क्या होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अलग होने का मतलब क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मोनोक्रिस्टलाइन एंड मल्टीक्रिस्टलाइन एंड थिन फिल्म, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। एटम अरेंजमेंट इन मोनोक्रिस्टलाइन मोनोक्रिस्टलाइन, ये आप देख रहे हैं, सोलर सेल। A PV module is combination of different number of cells connected in series. PV panel क्या होता है? Number of cells in a solar cell connected in series. Then it called a PV photovoltaic. ठीक है? ये क्या है? ये देख रहे हैं आप? This is called grid line. This is called bus bar. This grid line is connected to this, like its positive point, its negative point. They both
connected to each other. So what will happen? Both cell will be in series connection. So there are 5 to 6 numbers of cells connected in series. Again 6 to 7. Again. Formerly, this whole lines will be connected in parallel fashion. So current will be same. Series में क्या होता है, parallel में क्या होता है बताइए. Series में क्या बढ़ता है? Current में वोल्टेज. ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसको कैसे आप पहचानेंगे? ये मोनोक्रिस्टलाइन होता है. जब जो भी मोनोक्रिस्टलाइन होता है, ठीक है, उसके बीच में क्या होगा, जो सेल्स होते हैं उनके सेल्स के बीच में ऐसे गैप बने होंगे. ये बहुत ही पुराना पीवी मॉड्यूल है, ठीक है. हम क्या करते हैं यहाँ पे, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर ट्राइंग टू establish a communication to private organizations. Like if someone asks is which technology is best suited for the particular location, like if you are install ताकि वो स्टीम बन जाए और पूरा 1 मेगावाट का आउटपुट ना मिले, थोड़ा कम मिल जाए, 700 किलोवाट का मिल जाए. 1 मेगावाट 1000 किलोवाट है ना. 1000 वोट को 1 किलोवाट बोलते हैं, 1000 किलोवाट को 1 मेगावाट बोलते हैं, और 1000 मेगावाट को 1 गीगावाट बोलते हैं. तो इसमें जो ये LFR है, लीनियर फर्नल रिफ्लेक्टर सिस्टम है, ये उसकी फील्ड है. अभी आपको और नजदीक जाके दिखा दूंगा मैं, पहले यहाँ पर समझ लो. इसके अंदर पानी को सर्कुलेट करते हैं डायरेक्टली. जो ऊपर से आपको दिख रहा था ना वहां से, वो इसका रिसीवर था ऊपर. उस रिसीवर के अंदर से हम पानी को डायरेक्ट अलाउ करते हैं जाने के लिए, और डायरेक्ट स्टीम जनरेट होती है इसमें 250 डिग्री सेल्सियस की. इसकी स्टीम सेपरेटर लगा होता है कि अगर पानी चला जाए बाई चांस उसके अंदर कोई, तो वो पानी अलग हो जाता है. और उसके अंदर से, और यहाँ पर जो PTC है, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर है, इसके अंदर पानी को नहीं डायरेक्ट हम डालते हैं उसमें, क्योंकि 400 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये. 400 डिग्री सेल्सियस पे पानी यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और ब्रेकेज भी हो सकती है ट्यूब्स में. तो हम इसमें वो सब्सटेंस डालते हैं ढूंढ के, स्टडी करके, जो 400 डिग्री सेल्सियस पे भी लिक्विड फॉर्म में हो, उबले ना. तो ऐसा सब्सटेंस एक थर्मिक फ्लूइड है, थर्मिनोल VP1, जो 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उसका. वो किसमें, कौन से सब्जेक्ट में आता है ना, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें. फर्स्ट ईयर में ऐसा है, स्केल सलज फॉर्मेशन वगैरह भी सब कुछ है उसमें. तो ये PTC के अंदर में थर्मिनोल VP1 डालते हैं, जो 400 डिग्री पे भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, और यहाँ से गर्म होके हाई टेम्परेचर वेसल में जाता है. फिर वहाँ से हीट एक्सचेंजर में पहले सुपर हीटर में जाएगा, और इससे जो स्टीम बनेगी, डायरेक्ट स्टीम LFR से, मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग टेक्नोलॉजी को हमने जोड़ा हुआ है इसमें. जनरली कोई भी प्लांट लगाते हैं तो कोई एक ही टेक्नोलॉजी से लगाते हैं, आइदर दिस और दिस. लेकिन हमारा R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो हमें सब कुछ चेक करके देखना है. तभी तो आप कह सकते हो ना कि ये अच्छा है, ये खराब है, या ये खराब है तो इसमें खराब क्या है, अच्छा है तो अच्छा क्या है. तो इसके अंदर से वो तेल ही है, वो ऑयल है. वो ऑयल गर्म होके 400 डिग्री पे यहाँ पे आएगा, सुपर हीटर में सुपर हीटेड स्टीम बनाएगा, और वापस लो प्रेशर वेसल में जाके और वापस गर्म होने के लिए फील्ड में चला जाएगा. सुपर हीटर से पहले भी 2 स्टेप होते हैं. एक प्री हीटर होता है, जो पानी ठंडा होता है इस कूलिंग टावर में, उसको इनिशियली हीट किया जाता है ताकि वो कुछ गर्म हो जाए, तो कम एनर्जी में भी जल्दी स्टीम बन जाए. एक तो अगर आप कोई भी पानी उबाल रहे हैं, एक तो वो पानी 60 डिग्री पे आपको मिले, और एक आप 20 डिग्री पे उसको ले रहे हो, तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना आपको. तो प्री हीट हम इसलिए करते हैं कि हमारी एनर्जी कंजर्व हो, बचे. फिर उसके बाद में स्टीम जनरेटर में जाएगा, स्टीम बनेगी उससे, और फिर सुपर हीटर में जाएगा ताकि सुपर हीटेड स्टीम जाए बनके. यहाँ से स्टीम फिर हम पावर ग्लोब में लेके जाते हैं. ये स्टीम टरबाइन है, मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन हमने इसमें यूज किया हुआ. जनरली आज की तारीख में कोई भी पावर प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन नहीं चलता है. गैस टरबाइन भी मल्टी स्टेज होता है, गैस टरबाइन पावर प्लांट होते हैं, जिसमें पाइपलाइन नेचुरल गैस PNG या लिक्विड नेचुरल गैस या कंप्रेस नेचुरल गैस दी जाती है उसको. जैसे यूपी में दादरी में रिलायंस का गैस टरबाइन पावर प्लांट है, दिल्ली में भी है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का पावर प्लांट है, जो
गैस टरबाइन से चलता है, स्टीम से नहीं चलता वो। तो ये स्टीम टरबाइन है, मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन है। मल्टी स्टेज का मतलब होता है कि डायरेक्टली जो फीड करेंगे, सबसे पहले जो टरबाइन चलेगा उसका जो आउटपुट निकलेगा उसको चलाने के बाद वो दूसरे वाले उसका इनपुट बनेगा, उसका आउटपुट तीसरे का इनपुट बनेगा, तीसरे का चौथे का बनेगा, ऐसे। तो 5 स्टेजेस हैं इसमें, 5 स्टेजेस हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। इससे फिर जनरेटर को जोड़ देंगे। अल्टरनेटर जो होता है जो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो 1 मेगावाट के साइज का अल्टरनेटर है। किर्लोस्कर का 3 फेज का हमने इसमें लगाया हुआ है। इसके बाद में इसकी जो स्टीम है वो कूलिंग टावर में यहाँ पे आ जाती है, वापस लिक्विड फॉर्म में आने के लिए, ठंडा होके, और लिक्विड दोबारा से फिर दोबारा इसके अंदर जाने के लिए। समझ में आया? अब जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है उसको आप नज़दीक से देख के उसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से।